So, hello and welcome to the IIT Bombay Alumni Podcast Series. I'm your host Dhananjay Kharath and proud IIT Bombay alumni. This podcast series has been a dream for me since I was a student at IIT Bombay from 2022 to 2024. I was wondered and excited, like where I can get single platform where I will go watch and see this inspiring journey of the IIT Bombay alumni. I searched everywhere, but I didn't find anywhere. So here is the concept or idea came into the picture. So this podcast is going to be into three parts. So number one, it will be like before IIT Bombay joining of the alumna at IIT Bombay, that is transformative years at Powai campus, and post IIT Bombay, like transformative journey after the IIT Bombay post IIT viewers. If you are new to this channel, subscribe my channel to don't miss out the any upcoming podcast on this my channel. Now coming to the our guest, Mr. Advait Kurlekar sir. He is a CEO of Apohan Management Consultant Limited. He is also our chairperson of IIT Bombay Alumni Association Board of Director. Sir has completed BTech in MEMS department in year 1990. So there are so many things about sir to say. But sir, ऐसे आज podcast अपना आगे बढ़ता जाएगा तो सर अपने तरफ से बोलते ही जाएंगे. तो चालू करते हैं. So I am very happy and excited to welcome our very first guest, Mr. Advait Kurlekar sir. Thank you so much. शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए. Thank you sir. So we will start our podcast in a first section. Like first section is before joining IIT Bombay. तो सर मुझे आप बताइए कि आपका चाइल्डहुड कैसे था, आपके फैमिली के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताइए और आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी. Sure. तो मैं तो जैसे बोलते हैं born and brought up in Pune हूँ. Okay. My parents are have been staying in a small town called Baramati. अच्छा. About 100 kilometers from Pune. Okay. In those days, there was no good school in Baramati. So my parents decided, I have an elder brother, 3 years elder to me. ये कब की बात है सर? ये अभी इतना पुराना कैसे जाऊं मैं, 1969 का बॉर्न हूं मैं. अच्छा 1969 हाँ. का. ओके. तो जब से मैं 3 साल का था, हाँ. तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे नानी के पास मेरे भेज दिया. अच्छा. शी वाज स्टेइंग इन पुणे and we got both me and my brother got admitted to a decent school in Pune. Okay. So convent school था तभी, 5 day week होता था. Oh nice. स्कूल को भी. अच्छा. तो Monday to Friday we used to be in Pune. Okay. Friday evening we used to sit in that Lal Pili ST bus. Okay. and go to Baramati. Sunday afternoon we used to come back. छुट्टियां होती थी, दिवाली या हमारा तो कॉन्वेंट था तो क्रिसमस ब्रेक वाज बिग, दिवाली वाज स्मॉल. तो एनी बिग हॉलिडे वी यूज्ड टू बी बैक इन विद माय पेरेंट्स. माय फैमिली इज अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स. दे यूज्ड टू रन अ हॉस्पिटल इन बारामती. So they used to be there and I used to be. So बचपन was very very what I would say lower middle class. Okay. 300-350 स्क्वायर फीट घर था. हाँ. उसमें मेरी नानी, हम 2 लोग, हमारे लिए एक डोमेस्टिक हेल्प. अच्छा. और शुरू में 2 चाचा भी थे जिनकी शादी नहीं हुई थी. सो ऑल ऑफ अस वर स्टेइंग टुगेदर इन दैट काइंड ऑफ थिंग. सो नोबडी टू टेक आवर होमवर्क एटसेट्रा सब सेल्फ स्टडी था. ओके. क्योंकि एक तो कन्वेंट में थे और कोई ऐसा पेरेंटल डे टू डे बेसिस पे नहीं थे. तो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था, मतलब उस टाइम पे खुद ही, मतलब या पापा मम्मी? हाँ, वैसे को देख के क्या है ना, वो जमाने में ऐसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन वगैरह ये कंसेप्ट ही नहीं होते थे. ओके. आप पढ़ाई के लिए आए हो, स्कूल के लिए आए हो तो बस पढ़ाई करना है, अच्छा निकालने हैं. हाँ. बी गुड ऑन इन योर रिपोर्ट कार्ड. करेक्ट. शो दैट रिपोर्ट कार्ड टू योर पेरेंट्स. करेक्ट. एंड बढ़ते चलो. परफेक्ट. सो वैसे होता था. तो थोड़ा वो आजकल के जमाने में देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ पेरेंटिंग ना, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग. वैसे हमारा तो रिमोट वर्किंग, रिमोट पेरेंटिंग हो गया था. अच्छा. हाँ, क्योंकि माय पेरेंट्स वर इन बारामती एंड वी वर विद आवर ग्रैंडमदर इन पुणे. सो इट वाज ऑल रिमोट एंड देयर वाज नो एडल्ट टू टेक केयर ऑफ आवर डे टू डे होमवर्क. फैंटास्टिक. रियली इंस्पायरिंग. तो ये ऐसा स्कूल का था. फिर 10th then till 8th I was in at that point in time ICSE करके बोर्ड होता था. भी है. मगर तभी वो जमाने में ICSE if you pass 10th then you get 5% grace marks. Because ICSE का जो लेवल होता था एग्जाम का, that was very tough vis-a-vis our Maharashtra board exam which is SSE. Okay. So if I get 81 then it will be construed as 86 for my 11th admission. But what was the percentage at the time, if you remember? So for example my elder brother, he got 81% in 10th. Okay. He was second in Pune. 7th in the country. Oh, nice. At 81% उसको कोई खड़ा नहीं करता था for 11th admission.
बिकॉज बाय देन वो जो 5% का जो ग्रेस मार्क हाँ, था हाँ, रूल वो गवर्नमेंट में निकाल दिया. ओ बैड लक. So because of my elder brother's experience of getting admission in a good college in Pune, हाँ हाँ. my parents decided to move me to SSC board. ओके. तो from ICSE हायर एजुकेशन बोर्ड हाँ हाँ. मुझे सीधा डाल दिया एक Normal, हाँ. मराठी मीडियम स्कूल में, नूतन मराठी विद्यालय नवमी पुणे. ट्रांसलेशन. एंड अगेन इट वाज रिमोट पेरेंटिंग. सो वो जमाने में तो एडमिशन वगैरह, बिकॉज आई वाज जनरली गुड फर्स्ट और सेकंड ऑलवेज इन द क्लास, हाँ हाँ. तो एडमिशन तो मिल गई. एंड इट वाज नूतन मराठी विद्यालय, so it was ओके. clearly a Marathi medium school. मराठी मीडियम. But somebody told my parent कि now they have started English medium school. ओके. So they said चलो English medium school. So my mama was there in Pune. So हाँ. it took me. तो आपको मतलब एकदम झटका लगा या मतलब? बोलता हूँ वो भी अजीब बात है. अच्छा. तो हो गया एडमिशन. हाँ. Because that was as clear that fee भरो एडमिशन है, मार्क्स तो अच्छे थे. करेक्ट. Then the next thing obviously is you go to a bookshop and buy the textbooks. करेक्ट तो करेक्ट. मैं और मेरे मामा जी गए बुक लेने के लिए अच्छा. और लेके आए. तो घर में आके देखा तो इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री इट वाज इतिहास, इंस्टेड ऑफ ज्योग्राफी इट वाज भूगोल, इंस्टेड ऑफ सिविक्स इट वाज नागरिक शास्त्र. नागरिक शास्त्र. एंड देन वी वेंट टू द स्कूल कि अरे नहीं इंग्लिश मीडियम की स्कूल है. ही सेड नहीं इंग्लिश मीडियम मींस साइंस एंड मैथ्स इंग्लिश है, सेमी इंग्लिश. सेमी इंग्लिश. Kind of. वो बोले नहीं थे. हाँ. तो फिर झटका लगा. 8th में मैं शिफ्ट हुआ. 8th का एक टर्म हमारा आईसीएसई कॉन्वेंट था. हाँ. तो कैलेंडर ईयर वाज एकेडमिक ईयर. करेक्ट. हमारा तो दिसंबर में 7th का फाइनल एग्जाम हुआ था और यहाँ तो एसएससी द टर्म स्टार्ट्स इन जुलाई. करेक्ट. तो 6 महीना आई डिड 8th इन दैट आईसीएसई. करेक्ट. तो वहाँ 8th में आई यूज्ड टू हैव 300 मार्क्स का ग्रामर, 300 मार्क्स का इंग्लिश, इंग्लिश. 100 मार्क ग्रामर, 100 मार्क लिटरेचर हाँ. और 100 मार्क शेक्सपियर, हो. एक्चुअल इन दैट शेक्सपियर लैंग्वेज. ओके. और तभी 8th में मराठी हाँ हाँ. इट यूज्ड टू बी बाल भारती तिसरं, बाल भारती. पक्षांचा राजा मोर, दैट काइंड ऑफ मराठी इन 8th स्टैंडर्ड. नाइस. And from there I went to a higher Marathi 8th SSC ओके. and एकदम lower Marathi English. बाप रे. तो मुझे वहां जो मराठी में मार्क मिलते थे हाँ. यहाँ इंग्लिश में मिलने लगे, और उल्टा हो वहां गया. जो इंग्लिश में मार्क देते थे उससे भी बेकार मार्क मुझे मराठी में मिलने लगे. That was a big transition. And then what happened is for me, हम्म, because I was in 5th, 6th, 7th in English medium school, हम्म. my Marathi was very weak because I had never learned Marathi grammar. करेक्ट. I don't know whether you are aware, but वो कबू धाबी, हाँ हाँ. salate, salanate, if हाँ. you still remember that. हाँ हाँ. I had never learned that. व्याकरण. And suddenly in 8th, I was sort of put into this high level. So that is the time I must acknowledge. In the after my first term, हाँ हाँ. दिवाली की छुट्टी में, हाँ. my mother took extra efforts हाँ. to teach me everything. ओ. And to cut the story short, by the time I passed out of 10th, हाँ हाँ. I came 17th in the board. ओ. And in that higher Marathi, I got 86 marks out of 100, Nice. which has never happened before. या. So तभी वो बोर्ड के रैंक निकलते थे हमारे जमाने में. हाँ, आजकल वो नहीं होता है. हाँ अभी नहीं होता. आजकल खाली रिजल्ट निकलता है. रिजल्ट आते हैं. हाँ. हमारे यहाँ रैंक होते, स्टेट में पहला कौन, दूसरा कौन. Correct. 17 इन द स्टेट. 17. तो Oh. देन अगेन द सेम थिंग कि एडमिशन तो बोर्ड में आया तो एडमिशन तो कहीं भी कहीं भी मिल college. सकते हैं. हाँ. तो इट वाज वेरी क्लियर, घर में बात तो हुई थी हाँ. कि कौन से कॉलेज में एडमिशन एडमिशन लेना है. हाँ. कि इन पुणे देयर इज अ स्कूल कॉल्ड सेंट विंसेंट स्कूल्स, हाँ हाँ. which is very good. Otherwise, where I was staying with my grandmother, हाँ. वहाँ एसपी कॉलेज करके है बगल में ही. या एसपी कॉलेज. तो बस एसपी में एडमिशन लो, और वो मिलनी ही थी क्योंकि मैं तो बोर्ड में आया था, रैंक होल्डर मेरिट था. मेरिट था. मालूम नहीं क्या होगा कि बिना किसी घर में बोल के हाँ. देयर इज अनदर वेरी गुड कॉलेज व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ कॉल्ड फर्ग्यूसन कॉलेज इन. फर्ग्यूसन वहाँ कॉलेज. एडमिशन लेके मैं आ गया. वाह नाइस. पैसा, क्योंकि एडमिशन तो क्या, मार्कशीट दिखाओ, पैसा भरो एंड एडमिशन लो, बिकॉज इट वाज एज सिंपल एज दैट. करेक्ट. काउंसलिंग सेशन वगैरह वगैरह जो आजकल है वो तो नहीं था. नहीं थे. बिकॉज आई वाज एनीवे 17, तो जो कॉलेज में चाहिए था वो मिल गया. फर्ग्यूसन में एडमिशन करके लेके आया. दूसरी चीज जो खतरनाक चीज हुई मेरे हाँ. इसमें, लाइक आई टोल्ड यू माय फैमिली इज डॉक्टर. हाँ. माय ग्रैंडफादर वाज अ डॉक्टर, बोथ माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स. तो प्रेशर भी था कि मैं मेडिकल साइड. हाँ. लकीली मेरा जो बड़ी भाई है, हाँ. ही हैड ऑलरेडी गॉट एडमिशन इन मेडिसिन. अच्छा. तो मेरे पे वो प्रेशर कम था. अच्छा. तो फर्ग्यूसन में मुझे जब फी भरी तो मुझे पूछा गया कि अरे आप क्या करना चाहते हो. पापा ने पूछा? ना फी वाले ने. अच्छा, फी वाले ने. हाँ. हाँ. तो हमारे जमाने में तभी ये था कि इफ आई टेक टेक्निकल, हाँ. देन 12th को जो इंजीनियरिंग एग्जाम होती थी, हाँ. इंजीनियरिंग एडमिशन, हाँ. दैट टाइम देयर वाज नो नीट वेट. या. इट वाज ऑन 12th का पीसीएम मार्क्स, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. करेक्ट. तो उसके ऊपर अगर आपने टेक्निकल सब्जेक्ट लिया, हाँ. तो 5% ग्रेस मिलते थे. अच्छा. तो हमको बोला गया हाँ.
कि ये 5% ग्रेस है, हाँ। तो बायोलॉजी छोड़ो, हाँ। उसकी जगह टेक्निकल ले लो। टेक्निकल ले लो, ऐसे ठीक है, टेक्निकल ले लिया, सही है। फी भर दी, हाँ, आ गया, घर में बता दिया कि आई हैव टेकन टेक्निकल। टेक्निकल। हाँ हाँ ठीक है, नोबडी रियलाइज दैट। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब क्या बोलते हैं उसको, सेमेस्टर एग्जाम रहती है, हाँ, तो मार्क्स आ गए। मार्क्स आ गए। हाँ, तो तभी पेरेंट्स ने पूछा ये सब है। ठीक है, बायो में कितना है? कितना है? हाँ, बायो क्या, बायो तो मैं छोड़ दिया। वाह। मतलब वो कुछ रहेगा ही नहीं। तो इतना बड़ा हंगामा हो गया घर में कि बिना पूछे बिना कैसे डिस्कस करके बायो कैसे छोड़ दिया। मैंने तो बोल दिया कि मैंने तो टेक्निकल लिया, बायो छोड़ ही था, तो मेडिकल होगा ही नहीं, तो मतलब मेडिकल होगा ही नहीं। बट लकीली बड़ा भाई मेडिकल गया था, तो वो प्रेशर कम था, हाँ, तो कम वो था। शॉक हो गया। एंड घर में इंजीनियरिंग किसी को आईआईटी मालूम भी नहीं था, अरे खाली मालूम था आईटीआई। ITI, हाँ, मतलब तो वर्डिंग का ईयर। करेक्ट करेक्ट। तो जब मुझे आईआईटी में जेई था हमारे यहाँ, हाँ, जेई। तो जेई वाज ऑल, जेई भी था, AI ट्रिपल भी था क्या उस टाइम पे? एआई ट्रिपल ही था। अच्छा। दैट वाज फॉर अदर कॉलेजेस, अदर कॉलेजेस। व्हिच आर नॉन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस। ओके। Normal college, हाँ, like that time पुणे में there was COEP, which is COEP, very good, College of very Engineering पुणे, वहाँ PCM एडमिशन थे। ओके। तो मेरा 12th मार्क्स, my PCM was 95.66, 95.6। so plus 5, तो 105.66. ओह, So again I used to I got admission in COEP in any department, any एनी branch I डिपार्टमेंट, want. एनी ब्रांच। JEE भी किया था हाँ, हाँ। हमारा, तो मतलब कोचिंग किया था या सेल्फ स्टडी? लार्जली सेल्फ स्टडी। हाँ। एक कोचिंग खाली मैथ्स के लिए किया था। हाँ। हमारा एक साथ दोस्तों का एक ग्रुप था, हाँ। तो ऑल ऑफ अस यूज्ड टू गो टू दैट मैथ्स क्लास। अच्छा। अभी उसमें वो जेई का भी निकले थे, ऑल 7 क्लियर फॉर जेई, हाँ, 5 क्लियर क्लियर हो गया। क्लियर हो गए, 2 नहीं हुए। छठा नेक्स्ट ईयर भी हुआ, हाँ। वो भी आया, बस और एक बचा हुआ? बच गया, वो सीओईपी में गया। अच्छा, डन। तो हम लोग जेई थे, तो तभी हमारा जेई वाज टू बी आजकल का जैसे एमसीक्यू वगैरह वैसा नहीं, हाँ, हाँ। इट वाज लॉन्ग आंसर्स। अच्छा। So even if our answer is wrong, हाँ। but you have done methods, हाँ, हाँ, methodology किया है, calculation किया है, मार्क तो you used to कंसिडर get करेंगे। marks. अच्छा, English was also there, PCM, अच्छा। तो 2 दिन के 4 पेपर होते थे, 2 दिन का जेई करेक्ट, था, करेक्ट, करेक्ट। तो वो जेई हो गया। हाँ, हाँ। तो देन आई हैड एन ऑप्शन, मेरा तो रैंक अच्छा नहीं आया था, कितना आया था? ऑल आई थिंक 1200 समथिंग। 1243 आई थिंक, या 1234, वन ऑफ दीज, अच्छा। 1 2 3 4 का कोई कॉम्बिनेशन था। हाँ, हाँ, तो रैंक आया था। हाँ। तो जेई में काउंसलिंग था, हाँ। तो आई केम हियर करेक्ट। again, remote parenting, so I came with a local aunt here. अरे बाप रे। तो यहाँ मेन बिल्डिंग में एलटी में, जो हम लोग एलटी बोलते थे, हाँ, अब LT, स्कूल का नाम बदल गया, लेक्चर हम्म। थिएटर का, हम्म। वहाँ काउंसलिंग था। हाँ। तो देन आई हैड अ कपल ऑफ ऑप्शंस एट दैट मैथ रैंक, कि यहाँ बेटा मिल रहा था, सिविल मिल रहा था, एरो मिल रहा था। अच्छा, मतलब आपका कुछ पर्टिकुलर नहीं था कि नहीं, IIT बॉम्बे ही चाहिए बस? आईआईटी ही मालूम नहीं था क्या चीज। हाँ, तो कैसे पता, पहले IIT कब सुना था आपने? मतलब ये ऐसे ही जब दोस्तों के साथ हुई बात, हाँ। आईआईटी करके होता है कुछ, हाँ। एक जेई करके बहुत टफ एग्जाम होता है, तो अच्छा, दे दो। एनटीएस भी किया था, एनटीएस भी मिल गई थी, अच्छा, टैलेंट सर्च। अच्छा, तो वैसे वो उसमें थर्ड मेंटालिटी बोलते हैं, उसमें वो जेई कर दिया, अच्छा। तो यहाँ आ गए। तो IIT बॉम्बे क्यों, मतलब बाकी के IIT में गए थे? मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे है, अच्छा, इसलिए डायरेक्ट। काउंसलिंग तो यही था। ओके। तो यहाँ आके पता चला कि आईआईटी पवई में, अपने हाँ, आईआईटी में, हाँ, क्या बोले मैं, मेटा, सिविल, हाँ, एरो, एरोस्पेस में से 5 ईयर केमिस्ट्री, हाँ, ये 4 मिलेंगे। हाँ, ऊपर वाले मतलब तो बेस्ड ऑन मार्क्स, रैंक बेस्ड ऑन माई रैंक, ओके, बेस्ड ऑन द हिस्ट्री वगैरह। दिल्ली में टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, और चेन्नई में नेवल आर्किटेक्चर। ओके। कानपुर खड़गपुर तो किधर है मालूम ही नहीं था, अच्छा, बहुत पता ही दूर नहीं है, ये तो कैपिटल सिटी है, हाँ, मुंबई दूर है, हाँ, पास है, नजदीक है। तो ये हुआ। हाँ। फिर सीओईपी में एनी ब्रांच आई वांटेड, और यहाँ ऐसा हो रहा है, हाँ। तो क्या करें? हाँ। देन लकीली माय पेरेंट्स हैड नोन सम फैमिली फ्रेंड्स हाँ। और बिजनेस पीपल, करेक्ट। सो आई मेट समबडी देयर एंड ही सेड कि बॉस, डोंट वरी अबाउट द ब्रांच, ओह, आईआईटी का छप्पा जिन जिन दिन जन्म भर लगेगा, टैग लगेगा, doesn't matter which branch, nobody is going to ask you after a few years. करेक्ट। तो नाउडेज आल्सो इट इज तो हैपनिंग। आंख बंद करके आईआईटी बॉम्बे जाओ और कहीं नहीं जाओ, कोई भी ब्रांच ले लो, करेक्ट, kind करेक्ट। of thing. तो हमारे एक, अच्छा लगा सुन के, मतलब हाँ, अभी भी वही चल रहा अभी है। भी वही है। अभी तो 100 में से शायद 80-85 लोग आते हैं यहाँ। तो मेरे एक अंकल थे, तो उनके एक पार्टनरशिप में ही वाज रनिंग मैग्नेट बनाने की फैक्ट्री। अच्छा, तो मैग्नेट बनाने की फैक्ट्री में मेटलर्जी आता है, मेटलर्जी आता है। तो देन मुझे बोला गया कि तुम मेटलर्जी करो। MEMS। तभी ये मेटलर्जी था। अच्छा, मेटलर्जी। आई थिंक I was the last or second last batch which was for metallurgy. फिर वो MEMS हो गया। ओके, तो फिर मेटलर्जी किया मैंने, करेक्ट। तो आ गए।
ऐसे बारिश के दिन थे, हाँ 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 हाँ, अभी तो मई चल रहा है मगर हम लोग तो जून में आए थे, अच्छा तो पूरा ये करके साइकिल, हाँ, बाकी सब सामान, अच्छा फिर हॉस्टल हॉस्टल था, हॉस्टल कौन सा हॉस्टल था सर मेरा आपका? हॉस्टल 2 था। हॉस्टल 2। हाँ, तो फिर आ गए, हम्म। फिर ग्राउंड फ्लोर, हाँ, तो बारिश। जैसे आपको एडमिशन मतलब ऑफर मिली आईआईटी बॉम्बे से, हाँ, एडमिशन हुआ कंप्लीट, तो आपने घर पे बताया होगा? नहीं नहीं, ये दिस वाज नॉट लाइक माय कॉलेज एडमिशन, दिस वाज अप्रूव्ड बाय द पेरेंट। ओके ओके, हाँ, तो मतलब खुश होंगे एकदम कि खुद ऐसा मतलब मालूम ही नहीं था सेलिब्रेशन किया या नहीं? सेलिब्रेशन, मगर मालूम ही नहीं था क्या अच्छा, है, मालूम ही नहीं था, मालूम ही नहीं अवेयरनेस था नहीं कि थी इतना। आईआईटी मींस अनदर कॉलेज, बस इतना बस ही था। दैट्स इट। एंड जो बारामती में बाकी लोग थे हमारे पेरेंट्स की, जो हाँ हाँ फैमिली फ्रेंड्स वगैरह थे, हाँ उन्हें तो उनको कोस लिया हाँ। कि अरे बारामती से बगल में 4 किलोमीटर आईटीआई है, बच्चे को इतना मुंबई में क्यों भेज दिया। बाप रे, वो जमाने का दैट वाज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग। इंजीनियरिंग का कोई यही नहीं था वो। अच्छा अच्छा बस तो दैट वाज लाइफ टिल आईआईटी। अच्छा, मतलब आईआईटी में एडमिशन हुआ? एडमिशन हुआ, एडमिशन आ गए, बोरी बिस्तर लेके हाँ, H2 ग्राउंड फ्लोर में आ गए। अच्छा। सो एकदम बढ़िया लगा, मतलब जो स्टोरी थी आपकी बिफोर आईआईटी बॉम्बे ज्वाइनिंग। ओके, सो अभी हम प्रोसीड करेंगे एट आईआईटी बॉम्बे, यस, जो आपको 4 साल मिले आईआईटी बॉम्बे में। तो आप जब पहले एंटर किया आईआईटी बॉम्बे कैंपस में, मतलब फर्स्ट टाइम वही था जब एडमिशन का जो काउंसलिंग था उसी टाइम करेक्ट पे? करेक्ट। तो उसी टाइम पे मतलब आपको देख के सब मतलब जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और इसमें क्या फर्क दिखा, मतलब कैसे आपको? सी आई टेल यू व्हाट, लकीली फॉर मी, हाँ मेरे जो स्कूल थे और हाँ मेरा जो कॉलेज था, हाँ एवरी स्कूल एंड एवरी कॉलेज आई अटेंडेड टिल 12th हाँ, हैड अ लार्ज कैंपस, अच्छा तो आई वाज यूज्ड टू कैंपस लाइफ। आई अच्छा, नेवर मतलब स्टेड इन अ इतना हॉस्टल। कुछ डिफरेंस नहीं? नहीं नहीं, अभी जैसे मुंबई में आप रहो तो इफ यू नो रुया कॉलेज, करेक्ट। मैं तो रुया कॉलेज को लोगों को बोलता हूँ ऐसा चिढ़ा के हाँ कि एक पाँव क्लासरूम में, दूसरा पाँव फुटपाथ में, दैट इज द काइंड ऑफ कैंपस दे हैव, बस अच्छा, मुंबई हाँ, मुंबई है। मुंबई, नॉट दैट मुंबई अदर कॉलेजेस डोंट हैव अ कैंपस, बट करेक्ट। रोया का ऐसा था, हम्म ऐसा दिस थिंग। यहाँ तो कैंपस इतना बड़ा था, हम्म काउंसलिंग के आए थे, हम्म, तो अच्छा ही लगा। बराबर। मैं तो 11 12 आई वाज इन फर्ग्यूसन व्हिच वाज अनदर लार्ज ह्यूज ग्रीन कैंपस, तो आई वाज यूज्ड टू इट, अच्छा, तो अच्छा लगा। ऑब्वियसली मुंबई में अदर देन फ्यू रिलेटिव्स एंड कभी कभी छुट्टी में आना होता है, तो बराबर, कोई मेरा संबंध नहीं था मुंबई से, करेक्ट तो करेक्ट। आ गए कैंपस में, हाँ, फिर हॉस्टल देखा। हॉस्टल देखा, हाँ, तो तो नए फ्रेंड्स वगैरह हो गए? तभी तो कोई नहीं थे। हाँ शुरू शुरू में हो गए हाँ हमारा, तो अभी तो सीन चेंज है, हाँ बट हमारा बैच वाज लाइक आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, हाँ हाँ, बट रफली 350 का बैच था। 350 का। एंड 7 या 8 लड़कियां थी, हम्म तो H10 में गई, हम्म, बाकी जो 350 लोग थे, दे वेंट मूव फ्रॉम H2 टू H9। H9। तो ये दो 10 हॉस्टल में, हाँ, 9 हॉस्टल में, 9 हॉस्टल। 8 हॉस्टल में, 2 to 9, हाँ, 350 people were distributed. Distributed. So my hostel, we were must be 40-50. हाँ, So every branch was represented in my hostel as the first year. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वैसा वैसा हुआ था। एंड फ्रेश ही है तो ग्राउंड फ्लोर में रूम मिलेगा, हाँ, डबल ऑक्यूपेंसी मिलेगा, अच्छा, और आपको जो मेंढक आते हैं, हाँ, या सांप आते हैं, या स्कॉर्पियंस आते हैं, हाँ हाँ, और पानी आता है, अच्छा, उसके साथ रहना है। वो तो भैंस fixed है। गाय वगैरह? भैंस गाय तो आती थी, भैंस नहीं थी, गाय थी। गाय थी। या वो तो है, बट रोज के तो ये और होते अपने इधर संजय गांधी नेशनल पार्क भी है, करेक्ट। तो लेपर्ड वगैरह हाँ, वो तो वो भी हुए थे, स्पॉट हुए थे। या ऑफ कोर्स, वो तो होता ही रहता है, बट डे टू डे बेसिस पे, हाँ बिकॉज थिंग यूज्ड टू स्टार्ट इन जून, हाँ एंड ग्राउंड फ्लोर, हाँ तो फ्रॉग्स, हाँ टोड्स, हाँ, एंड कभी कभी होपफुली नॉन पॉइजनस स्नेक्स, अच्छा, हाँ एंड क्या बोलते हैं उसको, विंसू, हाँ हाँ, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन। वो तो स्टैंडर्ड होता तो नेचुरल है, मतलब रहेंगे था। साथ में। वो डबल ऑक्यून से हम बोलते थे 2 ह्यूमंस हाँ, एंड 1 or 2 एनिमल्स। अच्छा, तो मतलब आईआईटी बॉम्बे ऐसा कुछ, मतलब आपको पता नहीं था इतना, लेकिन लोग बोल रहे थे कि लेना है, इसलिए आप आए। ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि यहाँ जाके ऐसे ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते थे क्या? नहीं, प्लेसमेंट में से फर्स्ट ईयर में कौन देखता है प्लेसमेंट, अभी इतना नहीं नहीं, अभी कैसे लोगों को आईआईटी बॉम्बे ए पॉइंट ऑफ व्यू से देखते कि प्लेसमेंट पैकेज अच्छा मिलेगा, इसलिए ज्वाइन करते, तो उस नहीं। टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था? तो ये क्या है फ्रैंकली ना, हाँ कि 1986 में हाँ जस्ट पास्ड आउट ऑफ 12th, हाँ, हम लोग तो इतने बुद्धू थे ना सब लोग। करेक्ट, आजकल के जमाने के बहुत स्टूडेंट तो एकदम बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट है। हम लोग इतने स्मार्ट तो नहीं थे। अच्छा, इतना कोई दूर का सोचता ही नहीं था कि प्लेसमेंट क्या होगा, हाँ हाँ, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अच्छा, आने के बाद समझा कि ओके, IIT इज प्रीमियर इंस्टीट्यूट, यहाँ तो मे बी 90-95% पीपल गेट अ स्कॉलरशिप एंड गो टू US Correct. वगैरह, वो आने के बाद समझा। अच्छा, तो इट वाज लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज, गुड कैंपस, अच्छा है। थोड़ी थोड़ी बाद में समझा कि अच्छा नाम भी है, ब्रांड भी है,
तो नौकरी शायद मिल जाएगी, बट प्लेसमेंट क्या है वगैरह बर्डन नहीं था आपके ऊपर No, 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 no. कि बिल्कुल लेना है प्लेसमेंट नहीं तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं, फ्री नहीं नहीं, आई मीन फर्स्ट डे, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर प्लेसमेंट वाज नॉट इवन डिस्कस्ड एट ओके ओके और एनीवेयर। नहीं अभी वो माहौल है एक्चुअली, हाँ वो तो है, अभी तो चेंज हो गया एमटेक में मेरे साथ तो हुआ था इधर आके। लाइक आई सेड वी वर नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल, वी वर नॉट स्मार्ट और ओवर स्मार्ट पीपल लाइक टुडे, करेक्ट। सो वो सब सोचते भी नहीं थे हम, अच्छा और एटलीस्ट मैं नहीं सोचता था, लेट मी पुट इट दिस। अच्छा, तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपने को स्टार्टिंग में कौन से चैलेंजेस आए, मतलब पढ़ाई के बारे में, सो एक एकेडमिक्स? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज इट वाज माय फर्स्ट हॉस्टल लाइफ। ओके, सुना था कि रैगिंग वैगिंग होता है, हाँ वही, तब जमाने में, आई नो आई एम ऑन रिकॉर्ड, तब जमाने में तो होता था रैगिंग। तो अच्छा आप सबका हुआ, आपने किसी के किए है कि ऑफिशियली आई हैव टू से नहीं ना, हाँ बट आई टेल यू एंड ऑफिशियली आल्सो व्हाई आई एम टेलिंग यू, एंड अनऑफिशियल आल्सो आई टेल यू कि नहीं, बिकॉज़ आई टेल यू द रीजन व्हाई। मेरा भी ज्यादा हुआ, बट मेरा ज्यादा रैगिंग नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट वीक हाँ। एक मेरा सुपर सीनियर था, हाँ। एज अ फ्रेशी आई हैड अ 4th ईयर सीनियर, हाँ। एट दैट पॉइंट इन टाइम ही वाज जीएस कल्ट, अच्छा जनरल सेक्रेटरी cultural affairs. He took me under his wings, and he uprooted me from the hostel, and I got into something called ANPROD, annual production. That means एक साल में एक बार there used to be a play, नाटक that IIT used to produce, IIT students and staff used to act, and we used to take part in competition. Okay. तो from first week मुझे उसने उठा के कॉन्वो में डाल दिया, हर रात यहाँ प्रैक्टिस होगी, एंड यू आर द प्रोड्यूसर। तो आपको कैसे सिलेक्ट किया, आपको ही मालूम नहीं? अच्छा, मे बी रैगिंग ने समझा होगा कि मैंने कुछ किया था ऐसा ही। अच्छा, उनको पसंद आया होगा। हाँ ऐसा कुछ तो। अच्छा, सो रात में पोस्ट डिनर मैं तो कॉन्वॉय में होता, तो कॉन्वॉय में हमारी प्रैक्टिस होती थी, एंड आई रिमेम्बर इट वाज अ मराठी प्ले, इट वाज अ 5 act प्ले कॉल्ड अंत अनंताचा। बेर्टोल्ट ब्रेश्ट करके जो जर्मन ये है, उनका ट्रांसलेटेड वर्जन था। अच्छा, और जम के प्रैक्टिस होती थी 9, 9:30 के बाद रात 1-1:30 बजे तक। अच्छा, तो मेरा सब, आप रैगिंग बोलो या इंडक्शन बोलो या ऑनबोर्डिंग बोलो आईआईटी का लाइफ में और हॉस्टल लाइफ में और सीनियर्स के साथ कैसे करना है, वो कॉन्वो में। अरे बाप रे। तो बाय द टाइम यूज्ड टू कम बैक एट 1:30 वगैरह, हॉस्टल वाज शांत, बिकॉज यू नो वो सब खत्म होते थे। बिकॉज हमारे जमाने में तो ऐसा डबल शिफ्ट वगैरह तो नहीं था। 8:30 to 12:30 used to be lectures with lunch, and 2 to 5 used to be lab और वर्कशॉप। अच्छा, लेक्चर मॉर्निंग में होते थे? लेक्चर मॉर्निंग में सबके, सेकंड हाफ में लैब होगा, सेकंड हाफ में लैब या वर्कशॉप, बस उसके बाद बंद। 8:30 लेक्चर मींस 7:45 ब्रेकफास्ट, साइकिल लेके जाओ हॉस्टल में, मेन बिल्डिंग, फर्स्ट ईयर तो मेन बिल्डिंग था, अच्छा, कॉमन कोर्सेज, आ जाओ, लंच करो, फिर आइदर लैब और वर्कशॉप, 5 बजे के बाद व्हाटएवर यू वांट टू डू, स्पोर्ट्स, ये वो वगैरह वगैरह। तो 5 बजे को रैगिंग नहीं होता था, यू नो वो फर्स्ट ईयर में एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स, या यू हैव टू डू समथिंग, करेक्ट, तो उसमें आई वाज इनटू स्पोर्ट्स। अच्छा, तो शाम को तो हॉस्टल में नहीं। तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो आपने बहुत कुछ किया है। एक्स्ट्रा करिकुलर ही किया है शायद एकेडमिक्स में। तो सेकंड ईयर जब था, तो देन आई बिकेम अ सेक्रेटरी इन द हॉस्टल। सेक्रेटरी इन हॉस्टल सेक्रेटरी, ओके, नॉट जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, हम लोग बोलते थे रसिया, रूम अलॉटमेंट एंड इंटरनल ऑडिट। अच्छा, तो अगर मैं हॉस्टल का सेक्रेटरी है इन माय सेकंड ईयर, तो आपका जो पहला सवाल था कि रैगिंग किया क्या, तो सवाल ही नहीं आता, बिकॉज़ एज सेक्रेटरी माय जॉब वाज टू एंश्योर दैट देयर इज नो रैगिंग। वाह, सो दैट इज द ऑफिशियल एंड करेक्ट आंसर आल्सो। नाइस, नहीं मतलब सही पकड़े। हाँ, कनेक्शन बहुत सही था, करेक्ट। तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर अपना एकेडमिक का कैसे था, सीजीपीए वगैरह, मतलब क्लास रैंकिंग वगैरह, टॉपर थे क्लास में या कैसे? फर्स्ट सेमेस्टर इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस एंड प्रोड एटसेट्रा, माय तभी हम लोग क्या बोलते थे, एसपीआई, सीपीआई ना, CPI is cumulative, and SPI is semester. Yes, semester. My SPI was 8.6. 8.6. And I was second or third in my class. Nice. I remember जून, हमारा कुछ मिड जून शायद कॉलेज चालू हुआ, लेक्चर चालू हुआ, फिर 3 या 4 हफ्ते लेक्चर्स होते थे, एंड देन समवेयर इन जुलाई we had this concept called bi-weekly tests. Every Monday and Thursday there will be a test for 30 marks, and again that will get counted till your 8th semester. Cumulative होता है, cumulative, वैसे. And I remember the first test was physics 1 with negative marking,
एंड हमारे पूरे 300 350 का जो बैच था हाँ उसमें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द हाईएस्ट मार्क्स हाँ वाज -4 आउट ऑफ 30. हाईएस्ट मार्क्स Highest marks was -4 out of 30. -4 out of 30 Yes, with negative marking. नेगेटिव Yeah, मार्किंग I think I remember, if I'm not mistaken, there was Professor Deepan Ghosh. दीपान घोष हाँ, he was there Oh my and God. -4 out of 30. तो सब हड़बड़ा गए थे. सही में वो पूरा जो नशा होता है ना कि मैं जेईई क्रैक किया, IMCS, दिस थिंग, सब लेवल पे आ गए. सब लेवल पे आ Because गए when highest is -4 out of 30 with negative marking, everybody is then it was a level player. अरे बाप रे। और वो ये अनप्रॉड वगैरह करके I got 8.6. सारे मेरे हॉस्टल वाले मेरे जो दोस्त थे तभी तब हाँ, हाँ, तब हाँ, बन गए थे. हाँ। एवरीबडी गॉट साइड कि अरे इसको ये कैसे हो. कैसे हाँ हाँ, मुझे भी हैरानी हुई सवाल कि उठता कैसे है ना हुआ. हाँ बट हुआ. कैसे मैनेज हुआ सब हाँ, एंड दैट वाज परहैप्स माय हाईएस्ट एसपीआई. उसके बाद तो गाड़ी नीचे नीचे ही आ गई. ग्राफ नीचे आ गया ग्राफ नीचे ही आ गया. ठीक है तो अच्छा लगा मतलब सुन के मतलब ये सब मैनेज करना एक लेवल अचीव करना सब सही था तो दूसरा सवाल था कि जो लर्निंग्स थे आपकी 4 साल में तो आपको क्या लगता है लर्निंग मतलब क्या एक लर्निंग है जो अभी भी आप यूज कर रहे हो मतलब क्या आपने डिफरेंटली देखा आईआईटी बॉम्बे में आके एक जनरल सवाल है सी आई विल टेल यू माय पर्सनल थिंग. हाँ पर्सनल Rightly or wrongly, हाँ but academics happened for me. ओके My main focus was non-academics. नॉन एकेडमिक Like I said, from week 1, I करेक्ट was into dramatics. ड्रामेटिक्स I was into extracurricular activities. Right. I was playing football. परफेक्ट I was playing kabaddi. I was doing long distance running. ओ माय तो गॉड यही था. लिस्ट इज देयर हाँ, तो वही था. And incidentally academics. So till 12th academics was the focus. IIT में naturally हुआ and I'm very happy and very sort of proud of it हाँ कि वो जो 4 साल होते हैं हाँ हाँ and that is true even for today. हाँ आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है. ट्रांसफॉर्म हो जाता है टोटल मीन्स टोटल ट्रांसफॉर्मेशन. ओके आई एम नॉट इवन सेइंग चेंज, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन. ओके Advait that came in 1986 June हाँ and Advait that passed out 1990. in 1990 April करेक्ट were like chalk and cheese. Totally different. And for me in a very very positive way. ओके पूरी मेरी पर्सनैलिटी बदल गई. नाइस So to cut the story short, in the third year I stood for institute elections and I won and I became GSHA, हॉस्टल अफेयर General Secretary Hostel Affairs. In my last year, so from year 1 I was involved as a volunteer and organizer in Mudai. In my third year, the final year, Mudai MI90, I became a core group member. I was in charge of सो security. आपने इलेक्शन लड़े हैं मतलब इलेक्शन तो लड़े हैं, हॉस्टल में भी लड़े हैं जीते भी है और जीते भी है और GSHA था. हाँ So again that became a huge responsibility. हाँ हाँ And what I was told by people then हाँ is in recent history, हाँ I was the only GS हाँ who actually passed out in 8 semesters. एक्चुअली पास हाँ, नहीं तो आप GS बनते हो तो एक हाथ वो एफ लग जाता है, समर या ऐसा कुछ. मतलब सब अच्छे से मैनेज करके हो गया करेक्ट करेक्ट वो सब हो गया. सो आई एम हैप्पी विद दैट एज वेल कि ये करके. सो टू आंसर योर क्वेश्चन अर्लियर, माय CPI एट द एंड ऑफ द डे हाँ वाज 7.5 ओवरऑल overall at the end of 8 semesters, which is not great, फर्स्ट क्लास but which is not bad. I'm not a 5-pointer definitely. या सो नाइस सर मतलब मजा आया सुन के सो उस टाइम पे कुछ यूपीएससी का क्रेज था क्या मतलब जैसे Hardly, not much. तो आपने were कभी few- सोचा नहीं था नहीं, यूपीएससी वगैरह जैसा IIT मालूम नहीं था वैसा यूपीएससी वगैरह मालूम नहीं नहीं था. इधर आने के बाद पता चला नहीं, एंड फॉर अ मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन पुणेरी पर्सन हाँ ये सरकारी नौकरी एंड यूपीएससी एंड एमपीएससी वगैरह हाँ। तो मेरे जहन में भी नहीं था. अच्छा मतलब इंटरेस्टेड भी नहीं था और पता भी नहीं था हाँ, बिल्कुल नहीं. और एमबीए आईएम से करने के लिए कैट वगैरह प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं, एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड इज थर्ड ईयर में जैसे मैंने कहा कि मैंने GSHA हो गया. हाँ तो अगेन आई शुड गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू. मेरे जो हमारे यहाँ तभी फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर में देयर यूज्ड टू बी अ स्मॉल प्रोजेक्ट एंड फोर्थ ईयर देयर यूज्ड टू बी अ BTP बीटेक प्रोजेक्ट बीटेक प्रोजेक्ट व्हिच यू डू अलोन या एंड ऑल अदर कोर्सेज आर 8 क्रेडिट. वो आई डोंट नो अभी क्या होता है. एंड BTP इज 20 क्रेडिट. या So it is the most important thing in your life Yeah. and you're doing it alone. करेक्ट तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो समर रहता है, हाँ तो थैंक्स टू माय गाइड हाँ प्रोफेसर वेंकट वेंकट इन MEMS, हाँ he gave me full support. कि क्या है as GSHA I was an ex officio member of IIT Senate. ओ तो सीनेट जब IIT which is the highest body of IIT, तो I was the ex officio member. तो जब सीनेट मीटिंग होती थी तो there was a part A and part B. करेक्ट We used to be
called for part B only. Part A was all academic discussion, तो student नहीं रहते. Part B, me, GSAA and GSHA, two of us were invited. तो ऐसा पूरा तभी LT में होता था ये लेक्चर थिएटर बोलते थे मेट बिल्डिंग के बगल में, अभी उसको और कुछ बोलते हैं शायद. तो वहाँ पूरे सब प्रोफ्स बैठे हैं. हमारे डिपार्टमेंट में भी प्रोफ्स हैं, डायरेक्टर डीन सब बैठे हैं. एंड देन फर्स्ट रो में 2 सीट खाली रहती थी. हमको बुलाया जाता था, हम बाहर लॉन में रहते थे. बाहर प्यून रहता था. जब घंटी बजती थी हमको लगता था अंदर आ जाओ. वैसा पूरा हॉल में सब फैकल्टी बैठे और हम लोग अंदर जाके बैठते थे. And then we used to discuss and we used to talk and they used to kind of think. HA and AA, दोनों. HA and AA. So lot of profs knew me. So my guide also knew me. So he said कि ठीक है कि अब जनरल सेक्रेटरी हो तो looks like you are more interested in those kind of activities. So I'll help you. तो तभी for my BTech project हमारे डिपार्टमेंट में there is something called SEM, Scanning Electron Microscope. Okay. वो IIT में तभी नहीं था, शायद अभी है. तो I used to go to BARC. अच्छा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे. तो हर दिन आईआईटी से बीआरसी में आईआईटी की बस होती थी. अच्छा, बस बिकॉज़ देयर वर मेनी पीपल हु वर डूइंग प्रोजेक्ट्स देयर. ओके. हर दिन मैं सुबह बस लेके जाता था. हर दिन मींस मंडे टू फ्राइडे. आई यूज्ड टू कम बैक एट 5:30. माय गाइड यूज्ड टू वेट फॉर मी इन द डिपार्टमेंट. आई यूज्ड टू शो हिम व्हाटएवर आई हैव डन. डेली बेसिस. ओके. यूज्ड टू टेल मी क्या क्या करना है, ये करो, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, व्हाटएवर इट इज. एंड टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बिफोर माय 7th सेमेस्टर स्टार्टेड, okay, my BTP was signed and sealed done. Oh, nice achievement. तभी लैपटॉप वगैरह नहीं होता था, कंप्यूटर नहीं होते थे. बाहर वाईपी के पास टाइपिंग होता था, तो हाथ से लिखो, मैन्युस्क्रिप्ट दे दो टाइपिंग का करके लेके आओ. देन वो फिर वो ये देखो, फिर वो वाइटिंग होती थी तो वाइटिंग से ये करो, फिर वो पेज वापस टाइप करो. All those things happened, but I finished those in that 60 days. And it is only thanks to my guide. If he wouldn't have been helpful, why would he wait till 5:36 and we used to work in the lab till 7:38 ना? तो गाइड का होना भी इम्पोर्टेंट जरूरी है. हाँ, वेरी सपोर्टिव. और एक हमारे यहाँ में कांड हुआ कि थर्ड ईयर में एवरीबॉडी टेक्स जीआरई. उस जमाने में तो एवरीबॉडी यूज्ड टू गो टू यूएस. तो जीआरई, तो मैंने भी जीआरई दी. अच्छा, आपने भी दी. थर्ड मेंटालिटी ना. अच्छा जीआरई. तो हमारे यहाँ एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन वी टुक जीआरई, कुछ तो कांड हुआ ऑस्ट्रेलिया में. अच्छा. And somebody got some question paper, faxed it to somebody in India. तो basically GRE का पेपर लीक होगा in short. तो हमारे जो scores आए वो null and void. And that whoever conducts GRE exam, they said कि we will give you a next date, but you don't have to pay fees because वो GRE का fee तो बहुत बड़ा होता था तभी, डॉलर्स में होता था तभी. But with the same fee, you could appear for again because they had cancelled. Correct. Meanwhile, thanks to my BTech project, etc., मेरा पेपर भी निकला था. अरे वाह. And my guide went and presented that paper in the US. अच्छा. And based on that paper, he was kind enough to put my name, his name first obviously, and my name. हमारा दो लोग थे. And based on that paper, I got a full paid PhD के लिए scholarship. Stipend. नहीं, scholarship भी. अच्छा. PhD admission. MS and PhD combined. In Washington St. Louis University. Nice. Without the GRE. Without GRE, just based on the paper. नाइस. तो वो जीआरई देने का वापस मतलब ही नहीं था, बिकॉज मेरा तो हो गया. नाइस. मतलब फॉरेन में आप जा ही रहे हो. करेक्ट. स्कॉलरशिप मिल रही है. करेक्ट. सब सॉर्टेड है. करेक्ट. कुछ टेंशन ही नहीं है. करेक्ट. तो मतलब सही था, मतलब एकदम. सो देन 4th ईयर बीटीपी डन. 20 क्रेडिट्स. बस मुझे खाली वाइवा देनी है. इंटरनल एग्जामिनर है, एक्सटर्नल एग्जामिनर है. वो 8th सेमेस्टर में होता है. तो वो आई फुल्ली कुड कॉन्सेंट्रेट ऑन माय जीएसएचए वर्क. ओके. तो मतलब 7th सेमेस्टर तक अपना बीटेक का प्रोजेक्ट हुआ था सब. बिटवीन 6th and 7th सेमेस्टर. मतलब 7th सेमेस्टर हो गया. करेक्ट. तो 8th सेमेस्टर में आपने क्या किया लास्ट सेमेस्टर में? बिटवीन 7th and 8th सेमेस्टर तभी हमारा मूडा यूज्ड टू बी इन दिसंबर. करेक्ट. तो मूडा वाज द मेन थिंग. बिटवीन 7th फेस्ट एंड मूड इंडिगो. टेक फेस्ट था बट छोटा था तभी. अच्छा, कंपेयर वाज द बिग. अच्छा, मूडा वाज बिग. अच्छा. तो आई वाज कोर ग्रुप मेंबर. तो काम तो बहुत था. तो वहां भी आप थे? हाँ, 5 दिन का मूडा. हर जगह सर थे मतलब. 5 दिन का मूडा होता था. एंड आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू स्लीप ओनली 1.5 hours that time, those 5-6 days. 5:30 to 7 in the morning, क्योंकि रात भर काम होता था ही. बीच में 2nd and 3rd ईयर में there used to be a lovely concept called हिमांकन. हाँ. तो 1st ईयर में I was a participant. तो माउंटेनिंग क्लब होता था. तो they used to take 8 batches of 25 people each, staff and students of IIT, staff, students and faculty, to Himalayas. अच्छा.
तो between my second and third year of summer vacation, I was a participant. अच्छा Between third and fourth year, हाँ I was also a core group member. I became an organizer. बाप रे So nearly 40-45 days I was in Himalayas. वाह तो नाइस वैसा नाइस हुआ था. फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के बीच में आई वाज अ पार्टिसिपेंट. सेकंड एंड थर्ड ईयर के बीच में आई वाज अ कोर ग्रुप मेंबर. थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में जो समर वेकेशन हाँ. था, आई कंप्लीटेड माय पीटीपी. वाह सॉलिड हुआ सब. नाइस नाइस तो सर मतलब सब तो सही है लेकिन उस टाइम पे आपको ऐसा थॉट आया कि मैं आगे जाके सीईओ फाउंडर स्टार्टअप कुछ चालू करूंगा मतलब कुछ प्लानिंग थी क्या आपके नो दिमाग नो में नो नो. सो कि सिर्फ जो है 4 साल अगेन सेम थिंग कि ये स्कॉलरशिप तो मिल गई थी मुझे. देन प्लेसमेंट सीजन भी आ गया दिसंबर में. तो आई लाइक एवरीबॉडी एल्स आई अपीयर्ड स्टार्टेड अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज. मेरा तो मेटा था. तो बिगेस्ट कंपनीज एट दैट पॉइंट इन टाइम द बेस्ट. तभी क्या होता कि यू नो सैलरी कितनी है उसके ऊपर ही जाओ पैकेज. हाँ. तो टाटा स्टील एंड टेल्को टिस्को एंड टेल्को. टिस्को बोलते थे एंड टेल्को बोलते थे. अभी टाटा स्टील और टाटा मोटर्स बोलते हैं. टाटा मोटर्स दीज वर द टू बेस्ट पे मास्टर्स. अच्छा एट दैट टाइम एकदम तोड़फोड़ सैलरी होती थी. 4,200 रुपया उस टाइम पे. पर मंथ. अभी के कितने अभी मालूम नहीं क्या है. अच्छा तो आई अपीयर्ड फॉर दोस इंटरव्यूज. करेक्ट. फिर तभी मन में सोच आई कि मेरा जो बीटीपी है हाँ. फॉर सम रीजन राइटली और रॉन्गली हाँ. आई वाज वेरी क्लियर दैट आई डोंट वांट टू परमानेंटली स्टे इन द यूएस. अच्छा कम बैक. देन आई थॉट कि मेरा जो बीटीपी है हाँ. जो रिसर्च किया मैंने बीआरसी में जाके, हाँ. उसका अभी ही इंडिया में कोई ये नहीं है. देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ दैट रिसर्च. ओके. उसके ऊपर 5 साल पीएचडी करूं मैं. हाँ. उसका कुछ और हाँ. मैं इंडिया का यूटिलिटी से और भी दूर जाऊं. करेक्ट. देन टू द शॉक ऑफ माय पेरेंट्स अगेन द सेकंड शॉक आफ्टर माय बायो छोड़ने के बाद आई सेड मैं नहीं जाऊंगा अमेरिका. अरे आई गॉट अ जॉब एंड आई टुक अप अ जॉब. अच्छा. तो बहुत हैरानी हुई घर में. बहुत हंगामा हुआ. हाँ. बट आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू यूएस. मतलब जो सही था रीजन वो बताया उनको या नहीं यही. बट फॉर देम इट वाज लाइक अरे आईआईटीएन हो. हाँ. स्कॉलरशिप मिली है. सब सही है. पीएचडी के लिए हाँ. जीआरई भी नहीं दिया है. हाँ. फिर भी पीएचडी मिल रही है. व्हाई आरंट यू गोइंग? हाँ. बट आई सेड नहीं जाना है. तो उनको समझाया नहीं कि डायरेक्ट बोला नहीं. हाँ क्योंकि जॉब लेके बैठा मैं. अच्छा. तो वो भी आई वाज नॉट अ टॉपर इन माय क्लास. लाइक 7.5 वाज लाइक समवेयर यू नो मिडिल. बट आई वाज द ओनली पर्सन इन माय डिपार्टमेंट टू गेट द जॉब in telco. Correct. Telco was like I said 4,200 was like the highest paying job in the country for an engineer. तो मिल गया. नाइस. तो फिर वहां से चालू हो गया. नाइस. तो तभी बाकी ऐसा कुछ सोच ही नहीं था. बस जॉब करनी है. वो टेल्को विद पुणे. सो आई गो बैक टू पुणे. अच्छा. दैट वाज अनदर बिग थिंग. ओके. तो आपने एमबीए कब किया? तो एमबीए 2 साल के बाद किया उसने. जॉब किया 2 साल मतलब पहले आईआईटी बॉम्बे. हाँ. आईआईटी बॉम्बे से बाहर गए उधर पीएचडी जो भी किया. ना आईआईटी बॉम्बे से टेल्को गए बाहर पुणे में. नहीं बाहर जाने का वो रिजेक्ट कर दिया ना. ठीक है. तो उसके बाद टेल्को. So even after my 4th year, after my BTP, I continued to work in the department under a prof. I did like a आरेगिरी kind of thing. अच्छा. घर जाके क्या करे ना. बराबर. फर्स्ट सेमेस्टर मेरे लोकल गार्डियन थे. मासी थी यहाँ. तो हर हफ्ते जाओ या महीने में 2 बार जाओ. फिर 2 महीने में 1 बार जाओ. फिर सेमेस्टर में शायद 1 बार जाओ. फिर वो पकड़ के लेके जाते थे कि आजकल तुम आते नहीं है. तो वो लगाव हो जाता है कैंपस से. अच्छा. तो फिर वो ये हुआ. तो मतलब 2 साल टेल्को में. हाँ 2 साल लगभग 2 साल टेल्को में. और उसके बाद एमबीए करना सोचा मैं. तो वो क्यों सोचा मतलब? तो टेल्को में व्हेन आई वाज देयर टेल्को देमसेल्व्स हैड अ स्कीम कि आप जॉब भी करो. हाँ. पार्ट टाइम एमबीए भी करो. वी विल सपोर्ट यू. अच्छा. तो मैंने उसको एनरोल किया. हाँ. देन आई रियलाइज कि एवरी टॉम डिक एंड हरी इज डूइंग दिस पार्ट टाइम एमबीए. अच्छा. देन आई सेड अगर मुझे बढ़ना है आगे बढ़ना है तो फिर ये सब पार्ट टाइम करके एक फायदा नहीं. फुल टाइम करना पड़ेगा. एंड अगेन आई टुक अ लॉजिकल थिंग कि एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर जीटी बोलते थे. जीटी. हाँ तो 2 ईयर का जीटी था. And then I would have got absorbed in M1 grade. M1 grade. हाँ. और M1 से M2 जाने के लिए मिनिमम 3 years था. 3 years. बट M1 के अगर मैं MBA करूं तो डायरेक्ट टेल्को बाय तो डायरेक्ट M2. तो ऐसे 3 साल के बाद शायद M2 मिले. या MBA के बाद डेफिनेटली M2 मिले. दिमाग शॉर्टकट है. शॉर्टकट. तो फिर MBA करूं. And then I was happy with Telco. So I said if I get back the job in Telco, why not? तो इसलिए वो MBA फुल टाइम किया. ये छोड़ा जॉब छोड़ दिया. हाँ.
और उसके एमबीए में गए, तो हाँ। एमबीए कहाँ से किया आपने? एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भवन अंधेरी में। तो उसके लिए कैट प्रिपेयर किया था? नहीं, जब तक ये डिसीजन हुआ, हाँ। तभी वो अगेन वो जमाने में कैट वैट यूज्ड टू हैपन एट नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम। कभी नवंबर में कैट होती थी, हाँ। फरवरी में फरवरी मार्च यूज्ड टू बी इंटरव्यूज एंड सिलेक्शन, करेक्ट। एंड शायद मई या जून से सेमेस्टर तो यूज्ड टू उसके स्टार्ट। प्रिपरेशन बाय द वगैरह? टाइम आई डिसाइडेड कि एमबीए करना है, हाँ। कैट वाज ऑलरेडी गॉन। करेक्ट। तो आई हैड टू ऑप्शंस। हाँ। तभी देयर वाज अ CWT, कॉमन रिटन टेस्ट हाँ। फॉर बिजनेस स्कूल्स इन मुंबई, मुंबई। एंड CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हाँ। फॉर बिजनेस स्कूल्स इन पुणे। पुणे या महाराष्ट्र ओवरऑल? पुणे, ओनली पुणे? हाँ, और मे बी महाराष्ट्र, आई डोंट। एमएसटी सीईटी? नहीं, CET। ओनली सीईटी, हाँ। ओके। तो पुणे में खाली दो ही थे, देयर वाज IMDR हाँ। एंड देयर व्हाट वी यूज्ड टू कॉल पुम्बा, पुणे यूनिवर्सिटी MBA, एमबीए। दो ही थे। या। एंड मुंबई में या शायद 5 या 6 कॉलेजेस थे। अच्छा। बजाज था, हाँ। सिडनेम था, हाँ, सिडनेम। NM था, हाँ। एसपी जैन था, चेतना था, वेलिंगकर थे। अच्छा। तो ये 5-6 कॉलेजेस का CWT, कॉमन रिटन टेस्ट। हाँ। तो आई हैड पास्ड, आई मीन आई क्लियर्ड बोथ। बोथ। तो फिर एक वो इंटरव्यू GD वगैरह वगैरह हो गया। हाँ। तो इन मुंबई आई गॉट, एक्सेप्ट बजाज, आई गॉट एडमिशन एवरीवेयर। ओके। पुम्बा एंड IMDR में मिला। होता ही, हाँ, वो तो होना ही था। देन आई टुक अ डिसीजन कि मुंबई इज बेटर हम्म, फ्रॉम एन MBA पर्सपेक्टिव। हम्म। फॉर सम रैंडम रीजन आई थॉट आई विल डू मार्केटिंग, अच्छा। एंड बट अगेन आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे मार्केटिंग मींस ऐसा सोप शैम्पू वाला नहीं करना है कुछ। मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे ढंग का मार्केटिंग करना है। अच्छा। तो सिडनेम नहीं लिया मैंने, क्योंकि अच्छा। सिडनेम वाज ऑल एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, FMCG काइंड ऑफ थिंग। अच्छा। अच्छा। तो बिटवीन NM एंड SP हम्म। मैं दोनों जगह गया। मेरा जो मेटलर्जी वाला क्लासमेट था, वो तो डायरेक्ट MBA किया था, हाँ। वाज इन NM। आई मेट हिम आल्सो, ही टुक मी, शोड हिज हॉस्टल वगैरह वगैरह। बट समहाउ NM का मुझे वो फील होता है ना, फील नहीं है। वो मैच नहीं हुआ। एंड इंटरव्यू आई गॉट एडमिशन, बट नहीं हुआ। हम्म। SP जैन वाज फैंटास्टिक। पूरा वो उसका माहौल था, अच्छा था। द एंटायर एडमिशन प्रोसेस वाज स्टूडेंट ड्रिवन, organized and driven. Obviously, the selection was done by the faculty, but the process was handled by student. Very transparent kind of thing. So SP Gen, and I was very happy. ओके, मतलब एडमिशन हो गया MBA? एडमिशन हो गया, फिर नौकरी छोड़ दी, यहाँ गए। तो घर से ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि नहीं, घर में अभी अमेरिका नहीं जाना है तो एटलीस्ट MBA करो। अच्छा, MBA करने के लिए हाँ, तैयार थे? एकदम। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था कि नौकरी की छेड़ी वगैरह? विद फुल अप्रूवल। फी तो उनकी भरनी है ना। तो नाइस। तो उधर कुछ स्टाइपेंड वगैरह मिलता था MBA करते समय या कुछ? नहीं, इट वाज माय थिंग ना। ओके। सो लगभग 2 साल जो टेलको में नौकरी की, वहां तो सैलरी मिल रही थी। अच्छा, तो उधर यूज कर दी? हाँ, थोड़ी सी फीस वगैरह। बट दैट टाइम MBA फी वाज आल्सो, आई थिंक सेमेस्टर का 6,500 था। हाँ। और 4,500 तो पगार था। बराबर। तो 4-5 महीने का सैलरी वाज द फुल फी। फिर उसके ऊपर ऑब्वियसली बुक्स, बाकी रहने, हॉस्टल फी, खाने पीने का, वो अलग बात था। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स सपोर्टेड। अच्छा, तो उधर से भी प्लेसमेंट लिया आपने? हाँ, तो SP जैन से आई शुड स्टे इन द हॉस्टल। तो मार्केटिंग चालू किया। तो जहाँ यहाँ GS था, वहां मैं CR बन गया। अच्छा, क्लास वो रिप्रेजेंटेटिव। आपने चालू रखा? हाँ, वो तो करना ही था। अभी भी चालू है? या एकेडमिक्स तो होता ही रहता है, बट बाकी चीजें करनी होती है। हाँ, तो उधर मतलब प्लेसमेंट का कैसे, मतलब? सो प्लेसमेंट तो दैट टाइम अगेन प्लेसमेंट वाज, आई मीन, ना आपको डर नहीं था कि प्लेसमेंट का ऐसा कुछ? ना, कभी भी ऐसा? SP जैन वाज वेरी वेल रिनाउंड। अच्छा। वेरी प्रीमियर काइंड ऑफ कॉलेज। प्लेसमेंट का कोई सवाल नहीं था तब तक। तो ऐसा प्लेसमेंट तो ये जहन में आया था कि हाँ, प्लेसमेंट सोचना चाहिए वगैरह वगैरह। अच्छा। तो 100% प्लेसमेंट वगैरह तो कोई इशू ही नहीं था। सो समर जॉब भी मिल गया। फर्स्ट ईयर के बाद समर जॉब करना होता है, इंटर्नशिप? नहीं, तभी हमारा समर जॉब होता था। एक्चुअली ड्यूरिंग समर वेकेशन। ओके। बाकी ऐसा 4 सेमेस्टर ये होते थे लेक्चर्स। समर जॉब यूज्ड टू बी एक्चुअली इन समर वेकेशन, बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। ओके। तो समर जॉब किया, फिर फाइनल प्लेसमेंट भी हो गया। प्लेसमेंट कौन सी कंपनी? तो फाइनल प्लेसमेंट मुझे वापस टेलको भी मिला। टेलको मिला? हाँ। सो हमारे जमाने में होता था कि थ्रू प्लेसमेंट यू गेट द सेकंड जॉब, यू आर आउट ऑफ प्लेसमेंट एंड यू हैव टू डिसाइड वन ऑफ द टू। करेक्ट। तो लकीली ऐसा हुआ कि बिकॉज ऑफ द पैरेलल सिलेक्शन प्रोसेस, आई गॉट 1, 2, 3 जॉब्स। अच्छा। टेलको था, TCS था, और AF फर्ग्यूसन एंड कंपनी करके, इट वाज इंडियाज लार्जेस्ट कंसल्टिंग कंपनी एट दैट पॉइंट इन टाइम। आई हैड डिसाइडेड कि मुझे कंसल्टेंट बनना है, कंसल्टिंग करना है। तो टेलको आई वांटेड, एवरीबody knew कि इसको तो मिलना ही है। टेलको came and they knew me and they would have checked my record as a GT. Generally my record was fine. तो
मार्केटिंग किया था। तो आई सेड कि आई वांट एक्सपोर्ट मार्केटिंग फॉर कार्स बेस्ड इन मुंबई। अच्छा, दे ऑफर्ड मी डोमेस्टिक मार्केटिंग ऑफ ट्रक्स बेस्ड इन इंदौर। इंदौर। हाँ, तो वो जमा नहीं। देन आई सेड नो। बहुत ये परेशान हुए लोग कि हाँ वी आर ऑफरिंग यू जॉब ऑन अ प्लेटर विदाउट इंटरव्यू। वाज लाइक नेम से ही था। हाँ 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 बट आई सेड नहीं, मुझे तो एक्सपोर्ट चाहिए। वो बोले नहीं, आवर नीड इज डोमेस्टिक, हाँ हाँ। नॉट इन कार्स, इन ट्रक्स, नॉट इन मुंबई और पुणे, इन इंदौर। देन Then I said no. TCS interview was another funny thing. हाँ I remember I don't think that person is there anymore. There was one Mr. Mhatre who was head of HR then. हम्म And पूरा इंटरव्यू उल्टा ही था. He हम्म, was trying to convince me कि why I should join TCS rather हाँ than उल्टा. हाँ हाँ। तो I said नहीं, I am not convinced कि TCS does management consulting. You are largely IT consulting. मुझे नहीं तो Correct, IT correct. जमता नहीं है. हाँ हाँ AFF was fantastic. And interview process, everything was fine. He gave me a job. Again, handsome salary of 4,500 rupees at that point in time, yeah, 4,800 rupees, which was very good salary at that point in time. नाइस नाइस। So फिर I got a तो job. उधर से कॉर्पोरेट चालू किया। फिर वहां से कॉर्पोरेट इन कंसल्टिंग चालू हो गया। चालू किया। Yeah. तो उधर उस टाइम पे कि आपको ऐसे दिमाग में था कि आगे जाके मुझे खुद का कुछ करना है, मतलब तभी तो नहीं था, बिकॉज यू आर फ्रेश, यू आर रूकी, यू तो डोंट नो आपका क्या टारगेट था, मतलब टारगेट ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे सीखना है। I mean, I spent 6 years in AFF, Hmm. Ferguson and Company. Hmm. Perhaps best 6 years in my professional life. ओके Best 4 years in my student life were 4 years in IIT. हाँ And best 6 years of my professional life was those 6 years of very hardcore grounding as a consultant. ओके Fantastic culture, fantastic bosses. I was lucky to get great bosses. ओके। I'm still in touch with them. I work with them as well. And जो भी अच्छा बुरा कंसल्टेंट हो, हाँ वो वहाँ वो 6 साल में मैं सीख लिया। अच्छा, Then- लर्निंग उधर ज्यादा हाँ हुई। हाँ हाँ, एकदम वेरी गुड लर्निंग, वेरी गुड एक्सपोजर, फैंटास्टिक कल्चर, फैंटास्टिक बॉसेस। तो कंपनी छोड़ी क्यों बाद में? तो तभी वन ऑफ माय बॉसेस, तभी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी प्राइस वाटर हाउस करके, एंड कूपर्स एंड लिबरेंट, पीडब्ल्यूसी। PW एंड CNL, अच्छा तो वो मर्ज हो गए। हाँ। उनकी PWC हो गई। अच्छा तो जो उनके एक पार्टनर थे, उनको हाँ। ये अच्छा नहीं लगा, हाँ। तो वो छोड़ के गए। हाँ। सो PWC एज अ मर्ज एंटिटी वाज हाँ। लुकिंग फॉर सीनियर पार्टनर्स। करेक्ट। तो मेरे बॉस को उन्होंने ले लिया। हाँ। बॉस को ले लिया तो आई वाज हिज फर्स्ट एम्प्लॉय इन द न्यू कंपनी। हाँ। सो ही सेड आ जाओ मेरे साथ, चलो। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। So I went there as a first employee ओह in नाइस। PwC. That's how I went. Otherwise, I mean, boss ने बुलाया इसलिए गए। So again, there was no interview. हाँ। But he said ऐसा नहीं हो कि मैं मेरे बंदे को लेके आया। तो मेरा भी एक कोलकाता बेस्ड पार्टनर है। That time PwC was based in कोलकाता। तो वो जब आएगा मुंबई, हाँ। तो थोड़ा वो मिल लो, इंटरव्यू ऐसा दिखाओ कि तुमने इंटरव्यू। हाँ। उसको बोला कि तुम दिखाओ इंटरव्यू लिया, मुझे बोला मतलब तुम दिखाओ formality करो। फॉर्मेलिटी करो, सो दैट वो फॉर्म में वो सब एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह हो जाए। एंड that's how I shifted from AFF to PwC. अच्छा, और उधर कितने साल? वहाँ 2-3 साल थे। एक कंपनी, मतलब मुझे एक सवाल आता है कि कितने साल एक कंपनी में रहना चाहिए ऑन एन एवरेज, आपको क्या लगता है कि डिपेंड करता है? It depends on that. I mean, now I'm on the other side. हाँ. I was invited to do a guest lecture during an induction in a business school in Pune. And I said कि okay, I'll do a AMA session. Ask me anything. तो एक लड़के ने उठ के बोला कि next 2 years how many jobs should I change? I said this is not a question which I will answer. There is no solid answer. There is no solid answer. And this is a wrong question also. अच्छा, कि 2 साल में मैं कितनी नौकरी चेंज करूं? तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। अच्छा लगे जब तक। आई ऑलवेज टेल माय ओन पीपल आल्सो, यू शुड लाइक द वर्क यू डू। करेक्ट। यू शुड लाइक द वर्क यू डू फॉर। करेक्ट। एंड यू शुड लाइक द वर्क यू डू विथ। करेक्ट। दैट मींस योर कलीग्स। परफेक्ट। ये जब तक 3 में से एटलीस्ट 2 अच्छे हैं, हाँ, तब तक आप लगे रहो। अच्छा, विदाउट थिंकिंग सेकंड थॉट। करेक्ट। तो जब अगर 1 साल है तो 1, 18 साल है तो 18। बराबर। एज लॉन्ग एज यू लाइक योर वर्क, किसके लिए काम कर रहे हैं, नाइस, एंड किसके साथ काम कर रहे हैं, अच्छा एडवाइस है। तो वो है। तो अगर 1 साल में आपको लगा कि नहीं अच्छा नहीं है, छोड़े जाओ। अच्छा, 15 साल हो गए और अभी भी अच्छा लग रहा है, मत छोड़ो। एंड ऑफ कोर्स बाकी फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, कल्चर, आर दे टेकिंग केयर ऑफ यू, ऑल दीस थिंग्स मैटर्स, बट फ्रॉम अ कोर जॉब कंटेंट पर्सपेक्टिव दीस 3 थिंग्स मैटर। ओके, तो PwC में कितने साल? PwC में शायद 2.5-3 साल थे। हाँ. देन आई गॉट अगेन हेड हंटेड बाय अनदर कंपनी, एंड देन eventually I became an associate director in PwC. कौन से कंपनी तक आने के बाद आपने सोचा कि मुझे खुद का कुछ करना है? ये जो थर्ड कंपनी थी, सीडर कंसल्टिंग, हाँ. I got hired there as a director. हाँ.
and they have Independent director, no director, only director. Okay, designation vice director. okay, designation. And they had an office in Mumbai, Singapore, and Dubai. अच्छा, So I was given a choice कि हाँ. क्या करना है. हाँ. I chose Mumbai again. हाँ. That time I was well settled in Mumbai. correct. I said सिंगापुर नहीं जाना है, फैमिली है, बच्चों का स्कूल वूल चल रहा है, तो I don't want to disturb that. So I said Mumbai. Eventually I got responsibility of doing Mumbai and Dubai. I used to travel a lot between Mumbai and Dubai. Stayed a lot in Dubai. I never got a permanent work visa in Dubai. I used to go there, work and come back. Correct. But travel होता था ज़्यादा. So I worked that and director level Director designation. I had a P&L responsibility. I had targets. I had sales targets, profitability targets, consulting delivery targets, client targets. ये सब था. मतलब चैलेंजिंग भी था और एंजॉय भी कर रहा था. हाँ. मिक्स But था. हाँ, that was the time where I thought कि maybe I should do something on my own. अच्छा, तब क्लिक हुआ. वहाँ जो मेरे बॉस थे, हाँ. he was maybe 5 or 6 years senior to me. That time I would be what, 33, 34-year-old. He must be 40, 41. I said कि if I डायरेक्टर तो पहुंच जाए, उसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं है. अच्छा, उसके ऊपर कुछ नहीं. Unless my boss quits or something bad happens to him, I can't move forward. Correct. So that means now time to quit. अच्छा. or change or start looking at change. तो जब मैं PwC में था, तो I had hired a person and अच्छी दोस्ती भी हुई थी. Correct. घर के रिलेशन भी थे because I was staying in Thane, he was also staying in Thane, तो our families knew each other. He quit PwC and he went to US and he introduced me to some person kind of thing कि एक पुणे based अच्छे हैं, महारथी है, business person है. He wants to get into consulting. He wants to start a consulting business in his group. He's looking at somebody like you. So why don't you meet him? Correct. I said, ठीक है, let's meet him. तो बातें होती रहती. We were nearly discussing for nearly 1 year. Oh. Till I finally decided कि ठीक है, चलो, I will join you. Join you. And that was my first step into entrepreneurship because I got part equity in that company. अच्छा. So from a pure employee, हाँ. I got part equity in that company. Yeah, as entrepreneurship. I was not fully owning the company, minority stake, but I still had that stake. मतलब अपने जॉब एज ए एम्प्लॉय कितने साल की है टोटल ऑन एन एवरेज? So from 93 to 2004. So 93 से 11 साल आपने पहले काम किया. हाँ. उसके बाद ही आप एंटरप्रेन्योरशिप में. हाँ, सेमी एंटरप्रेन्योरशिप हो गया. सेमी. हाँ, 5 साल वो कंपनी चलाई. हाँ. एंड देन 2009-10 ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था, वो लेमन ब्रदर्स वगैरह. Then I said this is the best and worst time now to get 100% into entrepreneurship. फिर मेरी खुद की कंपनी चालू की. अच्छा. अभी 15-16 साल से अपॉन मैनेजमेंट कर. अच्छा. That is the journey. That is the journey. Nice. तब आप सीईओ बने खुद की कंपनी के? वहां भी मैं सीईओ था. हाँ. यहाँ भी तो मेरी कंपनी है. जो मुझे जो चाहिए वो मैं डेजिग्नेशन दे सीईओ ले लिया. फाउंडर वगैरह. हाँ, सीईओ. तभी वो स्टार्टअप वगैरह माहौल नहीं था 15 साल पहले. अच्छा. सीईओ. अच्छा, तो बहुत अच्छी जर्नी थी. मतलब 10, 11, 12 साल आपने दे दिए कॉर्पोरेट में, उसके बाद ही जंप किया एंटरप्रेन्योरशिप में. अच्छा लगा मतलब सुन के. तो हम अभी रैपिड फायर करेंगे थोड़ा. ओके. क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है. तो सर, हॉस्टल और लाइब्रेरी? व्हाट इज लाइब्रेरी? लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी. वेयर इज इट? कैंपस. You got my answer. Okay. One word to describe your IIT Bombay journey. Fantastic. Most fun event during your time at IIT Bombay? One specific incident in Mudai. Okay. Morning classes or late night study? Morning classes, and whatever I used to study, I used to get up at early morning. So early morning studies. Okay. मुझे बाकी टाइम ही मिलता नहीं. टाइम नहीं मिलता था. Very busy with non-academic work. Your favorite professor at IIT Bombay? Professor Ballal in my department. Okay. Yeah. He was the person because of whom even after my BTech project, before I started my job, I continued to work with him. Okay. A least favorite subject during BTech? Electronics. मजा नहीं आता था. बोरिंग लगता था. नहीं, somehow डर लगता था, और वो डर के कारण मेरा ग्रेड्स भी नहीं अच्छा है उसमें. Okay. Startup. Like a fear. Startup or corporate? First corporate, then startup. अच्छा, both. हाँ, because you can't get into startup. I mean, you should not. थोड़ा सा experience चाहिए. Mentor or leader? Mentor. Yeah.
Okay. Your leadership style in one word. I would like to believe that it is very participative and inclusive and democratic. But let people who work with me tell you that. Okay. One word your friends would use to describe you. Organizer. Organizer. Okay. Your biggest inspiration as a person or idea. Oh. No, I think there's no one person. Okay. I mean, over the years, Mhm. and again, since we're talking of IIT, in those 4 years of IIT, Mhm. several people, Mhm. both on the non-academic side, Mhm. academic side. When I was GS, we had a Dean of Student Affairs, Mhm. Professor Patni, great person. Unfortunately, many years ago, he passed away. But yeah, so the Dean, my guide, like I said, who was HOD at that point in Mhm. time, the GS cult who sort of, took me under his wings, several people. Acha. And last one is, what's your secret talent that no one know at IIT Bombay? Oh God. Not sure I have an answer for that. Okay, okay, no problem. So, guys, here is the we brings us to the end of this podcast. So, thank you, sir, for sharing your inspiration Thank journey you. My pleasure. from your childhood to this CEO of the company. So, thank you for coming. So, guys, if you are new to this channel, please subscribe the channel for upcoming podcast. And thank you very much. This is your आज के एल्यूमिना में थे आपने अद्वैत कोरलेकर सर है. सो गाइज आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसके साथ करूं? जैसे कि कोई एल्यूमिना आपको लगता है कि ये एल्यूमिना के साथ आप पॉडकास्ट के फेवरेट जो एल्यूमिना है वो भी कमेंट सेक्शन में दे मुझे, और नेक्स्ट एल्यूमिना के बारे में थोड़ा बताओ कमेंट सेक्शन में. थैंक यू गाइज. एंड सर को मेरे तरफ से, मेरे टीम की तरफ से छोटा सा तोहफा. Thank you. थैंक यू सर. Thank you so much. थैंक यू. बाय. Vijay Kharat signing off for now. Keep learning, keep inspiring, and keep listening. Thank you. Bye bye.